people don't know how to handle debt properly. तो आप उन लोगों के लिए क्या एडवाइस दोगे? एक तो अगर आपका पर्सनल नीड है तो लेना चाहिए. आपको स्टॉक मार्केट में उस पैसे से इन्वेस्ट नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नेवर बी अ स्टेबल इनकम और नॉट अ गारंटी रिटर्न. सेकेंडली, अगर बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसको ग्रोथ देख के लेना चाहिए. अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए. जो भी बिजनेसमैन इस तरह का कोई कदम उठाते हैं वो हमेशा डूबते हैं. जंजाल है. Though I am in this business, I would say. Hey guys, welcome to the latest episode of our podcast. आज हम एक बहुत ही यूनिक गेस्ट के साथ आए हैं, Mr. Kaushik Mehta sir. So just as a bit of an introduction, sir is the founder and CEO of Ruloans. And शायद आपने Ruloans के बारे में सुना नहीं हो, but Ruloans has till date distributed 1.15 lakh crores worth of loans. That's more than 1 trillion rupees. And more than 150,000 customers को सर्विस किया है सर ने. सर, आपने एक इतना अच्छा बिजनेस बनाया है, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं आपने जर्नी कहाँ से शुरू किया था? So journey we started that we were earlier a database vendor and we were supplying data to the different banks and BFCs and all. So from there we got the idea that if we have a databases, we can definitely call to the customer and bring the customer to the banks and sell the financial products. So that way we started in year 2000 with the influence of Mr. Rahul Verma, who was our customer for databases. And then he gave us this idea that why are you not selling our credit cards for Standard Chartered Bank? And then we have started Standard Chartered credit cards with him. And so that was in year September 2000. Today we almost crossed 24 years. And we are still in this business. We are growing leaps and bounds. Last year we did 38,000 crores, as I mentioned earlier. And this year we are targeting more than 50,000 crores. No, that's a really impressive journey. Yes, it is. And What is we already crossed 15,000 crores in last 4 months. Wow. So in this journey, 24, 25 years long journey, there must have been some key points. I mean, I'll start out maybe a really big key point for a lot of people in this space was the 2008 crisis. So what have been the key points in our journey? Maybe we can start with 2008 crisis. I just want to have a word on that it was a very dangerous crisis for us. Basically, everything is wiped out. No banks, NBFC was working on that time. Everybody was just washed off their hands and avoid doing any business, particularly for credits. So in 2008 December again, Stanchart has hold our hand and we again started credit cards with them. So before 2008 it was one bank, one DSA. So if we have suppose HSBC DSA, so we can't go to any other bank or to sell any other product which is being sold by HSBC. But in 2008, post 2008, the scenario has changed. Every bank is allowing us to sell their products and other bank is never taken the objection. So that way the journey has changed. But that 4 months from June, 6 months, you can say June to December was very crucial, critical, and we faced huge problems. But we passed on those problems also. And so I think so the main point where we worked well is that honesty. I understand that it is very common for everyone that honesty is not a big deal. But yes, I think so. Honesty worked very well for us. And we were always honest with everyone. And today also our company works on honesty and proactiveness on the complaints of anybody. Any small of the guys' complaint will be taken care by top to bottom line, top to bottom everyone. So on that basis, we always proactive, we always honest, we are very hardworking guys. So we got this benefit out of it. Secondly, I would say that in 2008 also, our vision was very clear that we want to spread across India. We see India is a big country and I personally see that huge opportunity for us to encash. India spreads is a advantage for every businessman. I say that. And we have taken from there in 2008 only.
and we started spreading. So our spread is also helped us. So spread is what distribution is. So spread and distribution goes all along. So how did you build this? Because just for some context for our viewers, Rulons is now present in more than 4,000 towns. No, we are not present in 4,000 towns. We are servicing in 4,000 towns. We are present in almost across India, in every state and every capital of India. We have offices. Every capital of every states of India, we have offices. And from there, we service more than 4,000 locations. So suppose if you are in Pune, so in Pune, around 100 kilometers, small towns and all will be served by us. So that way, it is more than 4,000 towns which we are serving. So how do you build this distribution? Where do you start? We started in, I would say that the journey has changed from 2008 onwards, because HSBC, we were a DSA for HSBC before 2008, and they have a limited presence in 6 or 7 metros of India. But as I have told you, that my vision was there very clearly, that I want to have a strong distribution. From there, we have taken that penetration in each and every market, and that way we build this beautiful business. So distribution is key of our business. Then honesty is always there, and hard working is there. Hard workness of everyone, from myself to everyone. Everybody has supported me from every bit of the world, and that we grow. So that's really incredible. I want to dig into the distribution journey a little bit more, because as a founder myself, I'm really fascinated by this journey. So from my understanding, building the distribution involves manpower and offices, right? Pretty much, and some marketing. So how did you open your second, third, fifth office? And when did you decide, what was the key scaling period? If I will say in a very crude manner, तो 2008 में मैं खुद ही बैग लेके निकलता था, every town जाता था, and I met lot of people. So वहाँ से मैं reference लेता था, and एक करके ताना बना बोन के एक ऑफिस चालू किया. फिर डेलीगेट करते गया मैं नीचे, और वो ऐसे स्प्रेड होते गए. बट वी ऑलवेज ट्राइड कि हमारा स्प्रेड बहुत कंट्रोल्ड रहे, हैंड्स ऑन रहे. एवरीबडी शुड बी हैंड्स ऑन इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ क्रेडिट. सो रॉन्ग हाथ में अगर पैसा गया तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन. एंड जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. दैट वाज आल्सो द मेन पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. सो वी हैव टेकन केयर अबाउट इट. हमने बहुत ही पहले ही हमारा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू कर दिया था, वेयर इफ वी ब्रिंग इन समवन, पहले नहीं करते थे हम, बिटवीन 2008 एंड 10 में नहीं करे, क्योंकि तब तो हम खुद भी नए थे और सीख रहे थे, और हम पर्सनली जाके मिल के लोगों को बिल्ड किए. लेकिन बाद में जब बहुत ही स्प्रेड हो गया, बहुत ही बड़ा होने लगा, सो देन वी हैव पुट अप अ मैकेनिज्म दैट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, रेसिडेंस वेरिफिकेशन, वो सब में अगर ग्रीन टिक्स आया तो ये लिया. मतलब वी हैव मेड अ पॉइंट दैट अगर किसी का छोटे से छोटा रीजन की वजह से नेगेटिव आ जाता था तो हम नहीं लेते थे, और हमारा बड़ा सिंपल सा है, तो कहीं और कर ले. वी वॉन्ट एबल टू डू इट बिकॉज we don't want to take any guy with a black marks. कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, we just avoid. मतलब धंधे के भूख तो थी, लेकिन ऐसी भी भूख नहीं थी कि आंख बंद करके कुछ भी खा लो. हाँ. So that was not the idea of our building the company. And we are very strict, clear and with clarity हम काम करते थे. जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम ठीक करते गए. देखो इतना बड़ा बिजनेस विदाउट प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये बोलना भी मुनासिब नहीं. सो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई वहाँ हम ठीक करते गए, प्रोएक्टिव एक्शन लेते गए. बहुत सारी जगह पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ा, वो भी करते गए, फिर वैसे बढ़ते गए. बट हमारा ग्रोथ में अगर हम देखने जाएं तो हम लोग एवरेज 25 to 30% से ग्रो हुए. एवरी ईयर वी हैव ग्रोन विद 25 to 30. मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, बट उससे ग्रो हुए. अगर आप लास्ट ईयर का फिगर देखोगे तो वी हैव ग्रोन बाय 42%. सो सच अ ब्यूटीफुल मॉडल वी हैव बिल्ट. एंड बहुत सारा इकोनॉमी भी फायदा करवा के दिया, बिकॉज
as economy grown, now we are what, third largest, almost third largest economy in the world. So credit growth is automatically increases. So as I told you earlier also, that debt ratio in India is just 28 to 35%. Yeah. Whereas in developed countries, the debt ratio is around 100%. Yeah. China is in 50-60%. Yeah. So China is also grown well. 70%. So we are still in a better position, and particularly our business is in a better position that we have still a lot of meat to, lot of juices are there to have it. And once it is grown, it is developed, then also there is an opportunity to do a lot of other works that want more money. People want to do adjustments and all. So the opportunity is huge in India, and we are saying that by 2030 we might doing more than 1.25 lakh crores a year. नहीं, at this run rate it's reasonable, 30% हो जाएगा. So we are planning so big. सर, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोला था, मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ. आपने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटर के भी हाथ सही होने चाहिए और उसमें इंटेग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सर, आप सही लोगों को कैसे ढूंढते और चुनते हो? बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. वो सबके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी है. हम भी कम अक्रॉस आते हैं कि सबको सिलेक्ट करते हैं और 2-4 ऐसे नमूने मिल जाते हैं जो प्रॉब्लम खड़ा करते हैं. एंड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. हमें अगर कोई मार्केट से इंफॉर्मेशन मिली, हम उसे बिगाड़ते नहीं हैं, या वी डोंट स्पॉइल आवर रिलेशन विथ हिम और हर. वी जस्ट कीप क्वाइट, we take our decisions, we just look at other way and we move on. So market information को हम लोग 1 रुपये का डायलॉग नहीं करते, as it is where it is लेते हैं, लालच नहीं दिखाते और हम बाहर हो जाते कि भाई हम आपके साथ नहीं कर पाए, थैंक यू. सो ये एक फंडा हमारा काम लगा है. दूसरा, हमने जो मैकेनिज्म लगाया प्रोसेसेस का, वेरिफिकेशन, ये वो, उससे बहुत फ़ायदा हुआ. मतलब वी गॉट गुड पीपल. थर्ड, कि अगर हमें कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिला है तो हम काम नहीं करते. मतलब अगर सपोज आपको आना भी है, सो एक तो पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसेस के मैकेनिज्म से गया है. फिर हम आपसे रेफरेंस लेते हैं कि भाई अगर आप इंडस्ट्री वाले हो तो आप 2-3 बैंकर्स को जानते होंगे, तो बैंकर का रेफरेंस. सो उस बैंकर से मार्केट में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन निकाल के फिर ही हम लेते कि भाई कोई इंटीग्रिटी में तो प्रॉब्लम नहीं. देखो, लॉस होगा तो चलेगा, लॉस होगा तो आप मैनेज कर लोगे, चलो ठीक है, अभी लॉस हो गया, आपने कहीं और रिकवर. बस इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे. सो वी हैव टेकन दिस प्रिंसिपल इन आवर स्लीव्स एंड वी हैव मूव ऑन. एंड नाउ तो इट इज इम्बाइबिंग द होल कंपनी दैट हम जब लेते हैं तो पूरा तहकीकात करके लेते हैं. हम किसी को जल्दी हाँ नहीं बोलते, लेकिन हाँ बोलते हैं तो फिर उसका हाथ नहीं छूटते. फॉर अ सरप्राइज टू यू, आई वुड से दैट हमारे साथ जितने लोग जुड़ते गए ना, टचवुड, कि कोई उसमें से कोई लोग छोड़ के नहीं गया. मतलब टॉप के लोग जितने ज्वाइन किया है उनमें से कोई छोड़ के नहीं, एक्सेप्ट कि वी इंटेंड टू हिम मूव आउट. हाँ, बहुत तंग कर रहा है, इट इज बेटर दैट वी जस्ट कीप आवर सेल्फ आउट फ्रॉम हिम. वैसे गए हैं लोग, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल में. मतलब मेरे को जैसे गिनती में याद होंगे तो 4-5 लोग होंगे बस, उससे ज़्यादा लोग हमारे को छोड़ के नहीं. ये तो अच्छी नसीब है सर. हाँ, ये तो बहुत अच्छी नसीब. वी जस्ट बॉन्ड पीपल वेरी वेल एंड वी टेक वेल केयर ऑफ देम. मतलब हमें लगता है कि हमने जो वेल्थ बनाई है आज एज अ कंपनी, वो सब उन्हीं की वजह से बनाई. तो वी डिस्ट्रीब्यूट विद देम ऑल्सो, जितना हो सके, जितना रिजनेबल है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करते. सो दैट वे वी वर्क वेरी देसी काइंड ऑफ थिंग. मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी काम नहीं. नहीं, आप सही बोलते हैं, वैल्यू इज अ बेडरॉक ऑफ अ कंपनी. बट ये मतलब हमारा जो एज है ना, आज हम डिजिटल की एज में चलते आ रहे हैं. मैं ऐसे जनरली एक बात बताता हूँ. मैं 2008 में मुझे आइडिया आया था कि यार ये ना पूरा डिजिटल होना चाहिए और पूरा डिजिटल करना है. सो 2008 में आई बुक द नेम कॉल्ड financeinIndia.com. तभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं था, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट नहीं किया. बट मैंने साइट तो तभी बना दिया था, financeinIndia.com एंड ऑल.
बट हाँ, हम लोग ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा एंगेज है, तो डिजिटल में हम लोगों ने तभी नहीं किया। फिर 2015 या 16 में वी वांट टू गो ऑल आउट डिजिटल। मेरे ख्याल से 15-16 में एक तो और कंपनी भी आ गई थी जो डिजिटल में मूव ऑन कर रही थी। बट अगर आप हमारा धंधा देखोगे तो हमारा धंधा बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। हमारा धंधा B2C है, मतलब हमारा जो एग्रीगेशन है वो हम ब्रोकर से करते हैं और वो कंज्यूमर को मिलता है। तो हमारा धंधा B2C है, वेयरएज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनका धंधा B2C जाता है, मतलब डायरेक्ट दे आर टचिंग द कस्टमर्स। सो 2016 में 15 में हमने कंपनी का नाम चेंज किया। पहले इट वाज कॉल्ड रूशम मार्केटिंग। सो हमने उधर से रूल लिया और लोन्स लगाए। सो वहां से हमने रूल लोन्स चालू किया। तो रूल लोन्स हमने चालू किया पूरा डिजिटल करने के लिए। 2016 में वी हैव टेकन द डिजिटल वे फॉरवर्ड। तभी भी मैं बोलता था लोगों को फ्यूचर इज डिजिटल। आप डिजिटल नहीं होंगे तो आपका फ्यूचर ब्लीक है। टुडे ऑल्सो इट इज प्रूवन दैट एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। सो 2016 में हमने क्या किया, हमारे धंधे के मुनासिब हमने ब्रोकर्स या कनेक्टर्स या पार्टनर्स ढूंढना चालू किया। तो वो पूरा का पूरा हमने डिजिटली चालू किया। सर तो मतलब ऑफलाइन और डिजिटल दोनों अलग मैकेनिज्म्स है। तो मैं पूरा कर ले, हाँ, आपको हाँ, आइडिया आ जाएगा। हाँ। सो हमने वो जो डिजिटल चलाया, उससे डिजिटल से हम लोग ढूंढते थे, लोगों को लेते थे, इंटरव्यू करते थे और पूरा टेलीकॉलिंग इंटरव्यू होता था, हमारे प्रोसेस में डालते थे और उसमें से जो अच्छा लगा उसको लेते थे। आज वो धंधा साल का कम से कम 5 से 6 हज़ार करोड़ का धंधा हो साल का, और वो बढ़ ही रहे। सो वो जो आते हैं लोग, वो बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं, मतलब 2 महीने में 10 लाख करेंगे या पूरे साल में मुश्किल से 1 करोड़ करेंगे, ऐसे लोग आते हैं। बट वो एक मार्जिन भी अच्छा देके जाते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं। सो हमारा जो डिजिटल का डेफिनेशन है, वो हमने जो डिजिटल का डेफिनेशन बनाया वो मोर ऑफ टू फाइंड द पीपल हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू आवर बिजनेस। और अगर आप रियल में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में देखने जाओ, सो मैं एग्जैगरेट नहीं करना चाहता, बट मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि डिजिटल एक मीथ है। सब फिजिकली हो रहा है। सब डिजिटल के साथ फिजिकल होता है। डिजिटल आपको अनेबल कर सकता है टू प्रोसेस योर फाइल फास्टर। कि डिसीजन तो आज भी फिजिकली ही आते हैं। जितने डिजिटल डिसीजन आए हैं उन्होंने काफी लॉस किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी अदर्स में हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरा ये मानना है कि फिजिकल इज अ राइट वर्ड, डिजिटल इज नॉट अ राइट वर्ड इन द फिनेंस इंडस्ट्री। अगर आप उसको फिजिकली डिजिटल को दोनों को मर्ज करोगे तो आप सक्सेस रहो। अगर आपने वो दोनों अलग अलग किया कि मैं पूरा डिजिटल करूंगा, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया था, हमने दबा के धंधा किया उनके साथ पूरा डिजिटल। बाद में पता चला दे लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ बिजनेस, दे लॉस, बिकॉज उन्होंने प्रिकॉशन लिया ही नहीं। उनको लगा डिजिटल है, मेरा सब कुछ सही है, कुछ फ्रॉड नहीं, एंड दे लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो। बड़ा लॉस, मतलब 20% is not acceptable in lending. in this industry. Yeah. But होता है ऐसा। अभी now they are strict, they have clamped down heavily. हमारा जो धंधा 60-70 करोड़ होता था वो आके गिर गया है 7-8 करोड़ रुपए। इस तरह से डिजिटल विल वोंट वर्क इन इंडिया एटलीस्ट। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, मैं वापस नाम नहीं लूंगा। they were behind us कि हम 10 मिनट में कार्ड दे रहे हैं, 15 मिनट में दे रहे, 1 घंटे में दे रहे। सो हमने बोला था कि सर आप ये दे रहे हो, किसी को 10 मिनट में या 15 मिनट में क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। That backfired very badly and they lost big. So मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ से आ रहा हूँ कि खाली डिजिटल नहीं होता, डिजिटल के साथ अगर आप फिजिकल करोगे then you will be successful. खाली डिजिटल करके आप नुकसान नहीं करोगे, और होता भी नहीं। सच पूछो तो होता ही नहीं। आप कुछ आंख बंद कर दोगे कि नहीं मैं ये नहीं देखूंगा और मैं डिसीजन दे दूँ। सो वैसे नहीं होता है। हाँ, मतलब डिजिटल always help you to build your business, sales,
फास्टर करने के लिए, प्रोसेस फास्टर अनेबल करने के लिए कि आपका रिकॉर्ड रजिस्टर अच्छा हो हुआ। गया, आपको पता चल गया कि ये बंदा गलत है तो फिर उसको वापस कार्ड नहीं दूंगा या व्हाटएवर, बट आप उसी के ऊपर डिसीजन लेने लगे तो मैं चलता तो नहीं है, बाकी हाँ। चलाएगा और नुकसान भी करने का। तो सर आगे का रास्ता क्या है, ये फिजिटल आगे का फिजिटल का रास्ता रूल्स के लिए क्या है? सो हम लोग तो ऑलवेज फिजिटल में बिलीव करते हैं, तो हम लोग जहाँ पे डिजिटल से, हमने देखा है कि डिजिटल से लीड्स आ सकती है, डिजिटल से प्रोसेसेस फास्ट हो जाते हैं, डिजिटल से डेटा एनालिसिस अच्छी हो जाती है कि कौन से डेटा पे फोकस करना चाहिए, कौन से रीजन पे फोकस करना चाहिए, कौन से बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। दैट विल हेल्प अस इन डिजिटल। फिजिकल तो मतलब किसी न किसी बंदे को काम करना ही पड़ता है उसके ऊपर, अदरवाइज वो टिकता नहीं है। मतलब 2 फाइल आपको दे देगा, बट आप अगर उसके ऊपर फिजिकली काम नहीं करोगे तो वो चला भी जाएगा आपसे। सो एज अ रूल्स वी ऑलवेज वर्क इन अ फिजिकल मैनर, दैट digitally we bring in the leads, digitally we bring in the business, but we process physically. और लेकिन आगे का स्केलिंग का रास्ता, आप 4000 टाउन्स तक पहुंच चुके हो, 700 ऑफिसेस है आपके, 1 ट्रिलियन रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने, 50,000 करोड़ का टारगेट है इस साल का। आगे का क्या, आगे का भाई समझो वी आर इन 2024, आज 2030 तक आपका क्या विजन है रूलोन्स के लिए? So 2030 we want to have a presence in each and every locations. We are also building our B2C model also, where we will approach customer directly also. And we'll increase our distribution as required, and we are expecting that we will open smaller offices in our smaller towns also. So our distribution's growth will be robust. See, small towns में हमें एक और फायदा दिखा है हमेशा कि small town में margins भी ज़्यादा, competition कम होती है, small towns में margins भी ज़्यादा होती है। So we want to expand big time in a small locations, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी काम कर रही है, वर्क कर रही है, भी ग्रोथ कर रही है, उस तरह से हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है to get into the smaller markets and bring in more business. Secondly, we already started our insurance business big time, so which is related to loan. So loan के साथ ही हम insurance देते हैं, और mainly to protect the interest of the customer and the bank also. कि आप अगर ये इंश्योरेंस लेते हो तो अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो बैंक को उसका पैसा मिल जाएगा और आपकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। So insurance may be doing foray into it, and we are also going to launch mutual fund also very soon. So expansion plan बहुत है, जैसे मैंने आपको B2C बताया, where huge opportunity in India particularly. So distribution is always there, and we want to even grow in other businesses. सर एक्चुअली मेरा थोड़ा एक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो ऑनेस्टली और इंटेग्रिटी के साथ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये इन्वायरमेंट में बहुत से बैड एक्टर्स हैं जो गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, और आजकल अगर हम देख लें तो बहुत से लोग ने ज़्यादा डेट लिया है और पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल डेट प्रॉपर्ली। तो आप उन लोगों के लिए क्या एडवाइस दोगे कि कैसे, किस तरीके से क्रेडिट लेना चाहिए, कौन से मेंटालिटी से लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी आज इस इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। So मेरा ये मानना है कि एक तो जिन्होंने ले चुके उसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, उनको तो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने किस हिसाब से लिया आई डोंट। बट आई डेफिनेटली से अबाउट द पीपल दोज हु आर गोइंग टू कम एंड हैव अ लोन्स और व्हाटएवर, एक तो अगर आपका पर्सनल नीड है तो लेना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में उस पैसे से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई स्ट्रांगली अपोज दैट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नेवर बी अ स्टेबल इनकम और नॉट अ गारंटी रिटर्न। सेकेंडली, अगर बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसको ग्रोथ देख के लेना चाहिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन इस तरह का कोई कदम उठाते हैं वो हमेशा डूबते हैं। सो इफ़ यू हैव अ प्लान्स ऑफ ग्रोथ कि मुझे ये ऑर्डर मिलने वाला है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए या ये इन्वेस्टमेंट करने से मेरा ग्रोथ बढ़ेगा, तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज टू सेव द बिजनेस कि नहीं इस महीने की सैलरियाँ देनी है तो मैं लोन ले लेता हूँ, सैलरियाँ दे देता हूँ और फिर आगे बढ़, सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। सो 2 चीज़ें हैं कि लोन या क्रेडिट कार्ड व्हाटएवर बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, और तभी लेना चाहिए अगर आपके प्लानिंग प्रॉपरली है। नहीं तो ये एक माया जाल है जिसमें आप उलझते जाओ। आप एक लोन लोगे,
फिर दूसरा लोन लोगे वो लोन रीपे करने के लिए, फिर तीसरा लोन लोगे वो 2 लोन रीपे करने, मतलब अपने में काम है ना और टोपी घुमारेगा वो ऐसे हो जाए। सो इट इज़ बेटर दैट पीपल बी केयरफुल, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं ये हॉन्टिंग करता ही है। आप सोचोगे मैं बॉम्बे से भाग के बैंगलोर चला जाऊँ, बैंगलोर से कहाँ भागो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाओगे। जो लोग शॉर्ट टर्म में ये काम करना चाहते हैं उनको आई हैव वन सिंपल एडवाइस, ये मत करो। उससे अच्छा जहाँ पे आप तकलीफ में हो तकलीफ भुगतो और बाहर निकलो। ये लोन तकलीफ से बाहर निकालने के लिए नहीं है, लोन आपके ग्रोथ के लिए काम कर सकती है। आपकी कोई पर्सनल नीड है विच इज फुलफिलिंग योर इनकम पैरामीटर्स, देन यू शुड टेक। बट आज की तारीख में बहुत लोग लोन लेके स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, बहुत लोग लोन लेके स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, बहुत लोग लोन लेके नया आईफोन या नई गाड़ी या मतलब कंजम्पशन। आईफोन नई गाड़ी है तो ठीक है कि क्योंकि वो तो चलो चलता रहे और लोन तो उसी के लिए मिलता है। सब वो नया आईफोन लेना है आपको, लोन भी है, आपका ईएमआई उस तरह से दे देंगे कि आप मैनेज कर पाओ। बट वही पैसा आप कहीं कोई और जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे आपका ही कंट्रोल नहीं, किसी ने बोला कि मैं आपको ये धंधा खड़ा करके दे रहा हूँ और आपने पैसा उधर डालो, को बैंक को पैसा देना पड़ेगा। मतलब मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारी जगह जहाँ पे मैं मना करता हूँ उनको स्पेसिफिकली, अगर मेरे ध्यान में आ गया तो अभी इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में भी नहीं आती। कोई कस्टमर आता है कि मेरे XYZ ने बिजनेस खोला है, मेरे को पार्टनर बना रहा है, उधर मुझे पैसा दो। हम हमेशा उसको एडवाइस करते हैं कि सर आप उस बिजनेस में हो नहीं, आप ये पैसे ले जाओगे आपके पैसे डूब जाएंगे और आप बहुत तकलीफ में हैं। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वी हैव टू वर्क विद देम। सो बट ये जो आपने क्वेश्चन पूछा वो रिलेवेंट है और सबके लिए है कि एवरीबडी हैज टू बी केयरफुल बिफोर टेकिंग अ लोन। लोन एक जंजाल है। इवन दो आई एम इन दिस बिजनेस आई वुड से बहुत ज़रूरत है तो लोन लो। आपकी चीज़ें अगर मैच हो रही है तो That's a really valuable advice, sir. Thank you so much. लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने मतलब इतने अच्छे वैल्यू से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो मेरे जैसे नए फाउंडर्स के लिए आपका क्या एडवाइस है? हमें क्या याद रखना चाहिए, किस तरीके से अपना बिजनेस बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, साथ में ऑनेस्टी रखनी। और जो आज मार्केट में चलता है कि कैसे भी पैसे बंद कर दो और पैसे मिल जाएंगे, ऐसा सब कुछ होता नहीं है। एक दो का सक्सेस स्टोरी पे 99 लाख बरी हो जाते हैं। तो पब्लिक हैज टू बी वेरी केयरफुल कि प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन नहीं है तो मॉडल सस्टेन नहीं करता। आज हमारे डीएसए इंडस्ट्री में अगर आप सबकी बैलेंस शीट देखो तो वी हैव अ सुपर बैलेंस, क्योंकि हमने हमेशा ये बात ध्यान रखी है प्रॉफिट नहीं है तो हम धंधा नहीं करते। हमें प्रॉफिट समझ में आता है, रीजनेबल प्रॉफिट। हम किसी से एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, बट शुड बी अ विन विन सिचुएशन कि भाई हम भी दुकान लेके बैठे हैं, हमारे भी खर्चे और हमारे पेट भी। सो प्रॉफिटेबिलिटी जो आज लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, मुझे लगता है वो थोड़ा नॉनसेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए कोई भी बिजनेस। और हमारे धंधे में हमने देखा बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स आती है और ऐसे ही करते लोग कि प्रॉफिट देखते भी नहीं है, बस मेरे को किसी का धंधा ले लेना है तो मैं कुछ भी मार्केट में पैसा फेंक दूंगा और ले लूँगा। सो आई वुड जस्ट एडवाइज व्होएवर न्यू एंटरप्रेन्योर्स कि यार करो, अच्छा है धंधा भी बहुत अच्छा है, बढ़ो इसमें, अच्छी बात है। बट अननेसेसरी कंपटीशन करके आप अपनी कबर ही खोदोगे और कुछ नहीं करोगे। बिकॉज जो ब्रोकर को आज आप ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करते हो वो भी आपके सस्टेनेबिलिटी के विरुद्ध जाते, सो वो आपको कितना दिन जिंदा रखेगा। एक सेकेंडली वही अगर हमारे जैसा कोई कंपटीटर आ गया और उससे ज़्यादा पैसे दे दिए तो आप तो टिकोगे ही। सो आपको महंगा मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको अपने कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू वर्क डिलीजेंटली कि आपके पैसे भी बने, आपका धंधा भी आपके कंट्रोल में रहे और आगे भी बढ़ो। क्योंकि खाली पैसा धंधा नहीं लेके आता, पैसे के साथ बहुत सारी चीज़ें भी धंधा लेके आती। सर्विस, आपका बिहेवियर, आपका ऑनेस्टी, आपका अप्रोच, आपका अवेलेबिलिटी, वो सब भी चाहिए। खाली पैसा दे के धंधा नहीं। वेरी वैल्यूएबल बात सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। इट्स बीन अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, आई रियली अप्रिशिएट इट। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आल्सो अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच।